Hello friends, good morning. This is Professor Atul Vasant Firke, Associate Professor at JS College of Commerce, Varda, conducting the lecture for MCOM 3rd Sem on a subject Statistical Analysis. We are on to our 6th lecture of the online teaching learning process. First unit we have already started, that is interpolation and extrapolation, and so far we have already completed the first method, that is binomial method, and we have already started the second method, that is Newton's method of advanced differential. So far we have already completed the 2 questions of the Newton's method. For practice purpose we are considering another third question for today's lecture. Problem for under consideration is, from the following data find out the number of students who obtained 3rd division marks. I have added the second question into the same numerical data. Number of students who have obtained distinction marks and number of students who obtained 2nd division marks. Friends, out of the 3 questions, one will be solved by me and another 2 are for your homework purpose. For that purpose, the clues will be given in the today's lecture. Second part and third part will be for your homework. First part, how many students have obtained 3rd division marks, that will be considered in this particular lecture. What is the data given? Given data is marks obtained by the number of students and how many students have obtained the respective marks. Marks obtained 30 to 40, it is obtained by 31 students. 40 to 40 marks are scored by 42 students. 50 to 60 marks are scored by 51 students. 60 to 70 marks are scored by 5 students, and 70 to 80 marks are scored by 31 students. We are presuming that these are the percentage marks obtained by the students. Friends, in the last lecture, if you are considering the last lecture's data, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को जो मार्क्स दिए थे, जो डाटा दिया था, वो आपका क्यूमुलेटिव सीरीज का था. मैं रिपीट करता हूं, लास्ट लेक्चर में लास्ट गणित में जो आपको डाटा दिया था वो आपका क्यूमुलेटिव सीरीज का था. क्यूमुलेटिव सीरीज में आपके वर्ड्स दिए थे बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70. whenever less than type of data is given or more than type of data is given, in that particular series frequency numbers are normally in ascending order or descending order. मतलब क्या है, मैं और एक बार हिंदी में बता रहा हूं. जब आपका लेस देन टाइप का डाटा रहेगा, बिलो टाइप का डाटा रहेगा, अप टू पैटर्न का डाटा रहेगा, जो नॉर्मली आपका 0 to 40, 0 to 50, 0 to 60, 0 to 70 एंड 0 to 80 रहता है, इससे हम लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप सीरीज कहते हैं. क्यूमुलेटिव लेस देन टाइप की सीरीज जब दी रहेंगी तब आपकी फ्रीक्वेंसी चढ़ते क्रम में रहेंगी, इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा, जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहता है इंटरपोलेशन की मेथोडोलॉजी के लिए. बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने गणित को सॉल्व करने के पहले आपको पहले एब्रप्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी मेथड मुझे अडॉप्ट करना है, आइदर बायनोमियल मेथड और न्यूटन्स मेथड और लैग्रेंज मेथड. फॉर दैट पर्पस अगेन द क्रॉस चेक. क्रॉस चेक हमारा क्या था? पहली कंडीशन, वेदर द डाटा इज ऑफ इक्वल सीरीज. इक्वल सीरीज, द रेंज ऑफ द डाटा L1 L2 10 का डिफरेंस है, L1 L2 10 का डिफरेंस है, L1 L2 रेंज में 10 का डिफरेंस है. एवरी क्लास इंटरवल इंक्रीजेस बाय सक्सेसिव 10 नंबर्स. तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल है कि गिवन डाटा इज ऑफ इक्वल क्लास सीरीज. हर एडजॉइनिंग वैल्यूज का डिफरेंस यदि लेंगे तो अब 10 का डिफरेंस है. पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई. सेकंड, व्हिच नंबर इज टू बी ऑब्टेन्ड? x एंड y के पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से जो मिसिंग पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस x का जब मुझे y प्रेडिक्ट करना है, उस समय हम लोग इंटरपोलेशन यूज करते हैं. यहां पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन हमें ऑब्टेन करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑब्टेन द 3rd डिवीजन मार्क्स. नॉर्मली 3rd डिवीजन मार्क्स मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 45. एग्जैक्टली 45 इट इज काउंटेड एज अ 2nd डिवीजन, बट बिलो 45 जो डाटा रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा 3rd डिवीजन के लिए. तो 3rd डिवीजन के लिए हम लोग बोल सकते हैं हमें डाटा चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 45 मार्क्स. तो वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड कितना रहेगा? यहां पर 45 का मुझे लेस देन नंबर चाहिए. अब 45 नंबर इज समवेयर इन बिटवीन 40 to 50, बट द नंबर 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 एंड इट इज नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ 10. तो मेरी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है कि क्लास इंटरवल 10 के सीरीज में रहेंगे, बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, जिस x का मुझे y प्रेडिक्ट करना है वो भी यदि 10 के डिफरेंस में रहता है, फॉर एग्जांपल से 90 और 100 और 40 के लेस देन यदि हम लोग कंसीडर करते हैं, तो प्रीवियस डाटा में हम लोग कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 20 to 30 का यदि मुझे प्रेडिक्शन करना है, तो उस समय हम लोग अडॉप्ट करेंगे 20 to 30 नंबर. अगेन 10 के डिफरेंसेस में है,
मल्टीपल्स ऑफ 10 में डाटा है तो एडजॉइनिंग डिफरेंस यदि सेम रहता है एंड वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इधर 10 के मल्टीपल्स में रहेंगे तो कंडीशन नंबर 1 एंड 2 दोनों फुलफिल होते हैं, हम लोग एडॉप्ट करते हैं बायनॉमियल मेथड। बट यहाँ पर 45 नंबर ऑब्टेन करना है, हम लोगों को एडॉप्ट करना पड़ेगा न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांस डिफरेंसिंग। कंडीशन 1 इक्वल क्लास इंटरवल आर देयर बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड इज एनी रैंडम नंबर। या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के लिए हम लोग बिलो 45 ऑब्टेन करेंगे, बिलो 60 इज ऑलरेडी अवेलेबल, वो डायरेक्टली मिल जाएगा क्यूमुलेटिव सीरीज से, एंड अबव 75 के डाटा के लिए हम लोग को अगेन इंटरपोलेशन करना पड़ेगा लेस देन टाइप का और मोर देन टाइप का, वो आपका तीसरा होमवर्क रहेगा। अब नंबर 75 इज अगेन नॉट मल्टीपल्स ऑफ 10 सीरीज रहेगा, जो हमें अब डिस्टिंक्शन के लिए कंसीडर करना है। तो 75 के लिए अगेन क्या रहेगा, इट इज नॉट इन मल्टीपल्स ऑफ 10, तो हम लोग एडॉप्ट करेंगे बायनॉमियल मेथड। और जब आपका सीरीज ही 10 के मल्टीपल्स में नहीं रहेगा तब आप लोगों को एडॉप्ट करना है थर्ड मेथडोलॉजी, लैग्रेंज मेथड। तो पहले हमने असेस किया व्हिच मेथड इज एप्लीकेबल एज द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड बट सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, वी आर एडॉप्टिंग न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांस डिफरेंसिंग। अब न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांस डिफरेंसिंग में हमें वैल्यू टू बी इंटरप्रेटेड क्या करना है, थर्ड डिवीजन मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 45, इसका मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। पहला कंडीशन आपका रहेगा डाटा इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन टाइप पैटर्न। तो क्यूमुलेटिव सीरीज में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस देन टाइप के पैटर्न में आपको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर हम लोग एडवांस डिफरेंसेस का लीडिंग टेबल फॉर्म करेंगे। तो कन्वर्टिंग द कंटीन्यूअस सीरीज इनटू द लेस देन पैटर्न। लेस देन पैटर्न में कंसीडर करते समय हमने डाटा कंसीडर किया है बिलो 40 मींस 0 to 40, below 50 means 0 to 50, it is the accumulation of first and second class interval। तो सक्सेसिव क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को हमें एडॉप्ट करना है। thereafter below 60, below 70 and below 80। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज को हम लोग कंसीडर करेंगे वाई सीरीज। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को आपको सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। बिलो 40 ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 31। बिलो 50 कंसीडर करते समय इट इज इंक्लूसिव ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड सेकंड क्लास इंटरवल, दोनों की सक्सेसिव टोटल करना है। Add the total of the frequency 31 and 42, it comes to 73। Below 60 it is the accumulation of first class interval, second class interval and third class interval। तो पहले तीन क्लास इंटरवल का सक्सेसिव टोटल करना है। सेकंड के टोटल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 73। जब 73 के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में थर्ड क्लास इंटरवल का इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड करेंगे 51। Add 73 plus 51, next cumulative number will be 124। Below 70, add 60 to 70 individual frequency of 35 into the number 124. So next cumulative number will be 124 plus 35. Next number will be 159. And last number, which is the total number of students who scored below 80. Addition of 31, 159 plus 31, total comes to 19। हमने पहले मेथड को कंसीडर किया, एडॉप्ट करना है न्यूटन्स मेथड। सेकेंडली हमने रीचेक किया कि इंडिविजुअल क्लास इंटरवल का यदि डाटा है तो इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन टाइप। लेस देन टाइप के डाटा में कन्वर्शन करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं लीडिंग डिफरेंस टेबल। लीडिंग डिफरेंस टेबल में भी एडवांसेस अप टू डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30, डेल्टा 40, डेल्टा 50 एंड सो ऑन। मुझे लीडिंग डिफरेंस टेबल कितने कॉलम का प्रिपेयर करना है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैल्यूज नोन। इस क्वेश्चन आर में 1 2 3 4 5 pairs of observations are known on the basis of which 6 pair of observation is to be find out। तो 5 pair of observation में से adjoining differences taking the pair of 2 कितने निकलेंगे, 4। तो जब given value 5 है leading difference will be 4, therefore table will be prepared up to delta 40। जब दिए हुए वैल्यू 6 रहेंगी तो leading difference will be 5, it is expanded up to delta 50। कॉलम 7 यदि दिए रहेंगे तो लीडिंग डिफरेंस टेबल आपका 6 तक रहेगा। अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा आपका लीडिंग डिफरेंस टेबल एक्सपांड रहेगा एंड सिमिलरली योर फार्मूला विल बी एक्सपांडेड। ओके, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं लीडिंग डिफरेंसेस। पहला कॉलम आप करेंगे लीडिंग डिफरेंस टेबल। लीडिंग डिफरेंसेस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यूज व्हाइल टेकिंग द डिफरेंसेस नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर आपको माइनस करना है। कंटिन्यू करते हैं। पहला लीडिंग डिफरेंस। लीडिंग डिफरेंस टेबल के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के नंबर नॉर्मली रहते हैं y0, y1, y2, y3 एंड y4। y is the measurable variable and x is the given data। गिवन डाटा जो आपका ऑब्टेन मेजरेबल वेरिएबल्स रहेंगे। डाटा आपका है मार्क्स का, इनकम का हो सकता है, एज का हो सकता है। ये सीरीज आप करेंगे x की, तो यहाँ पर नंबर रहेगा आपका x0 is below 40, x1 is below 50, x2 is below 60, x3 is below 70 and x4 is below 80।
लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहला लीडिंग डिफरेंस कंसीडर करेंगे, सेकंड नंबर 73 माइनस नंबर 31। नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर आपको माइनस करना है। अगेन वैल्यूज कितनी है 5, तो लीडिंग डिफरेंसेस कितने निकलेंगे 4 के बेसिस पर नेक्स्ट लीडिंग डिफरेंस कितने निकलेंगे 3, देयर आफ्टर 2 एंड लास्टली इट विल बी 1। जहां एक डिफरेंस निकला वहां पर टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले लीडिंग डिफरेंसेस फाइंड आउट करता है हर सक्सेसिव वैल्यूज का डिफरेंस बिटवीन द नंबर 73 एंड 31। 73 में से नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करना है। कौन से नंबर में से कौन सा नंबर माइनस करना है माइन्यूटली देखना है, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे, तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या माइनस करेंगे, चौथी संख्या में से तीसरी संख्या माइनस करेंगे। अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। पहला लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, सेकंड नंबर 73 माइनस नंबर 31, लीडिंग डिफरेंस कम्स टू 42। कैलकुलेशन कैसे करना है आप पेंसिल से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने पूरे वर्किंग्स लिखे थे, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है करके वर्किंग्स में यहाँ पर नहीं लिखता हूं, आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं नंबर 73 माइनस 31, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय ये चीज समझ में आ जाती है, बट फॉर रिवीजन पर्पस इट कैन नॉट रिकलेक्ट, तो रिकलेक्शन होने के लिए आप पेंसिल से अपने रिमाइंडर लिखेंगे, रनिंग नोट्स लेते जाएंगे। नेक्स्ट लीडिंग डिफरेंस सेकंड फाइंड आउट करना है, तो इट इज डिफरेंस ऑफ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। फॉर्मूला के हिसाब से नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करेंगे, थर्ड नंबर 124 माइनस प्रीवियस नंबर 73, डिफरेंस इज 51। तीसरा लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते समय फोर्थ नंबर 159 माइनस 124, लीडिंग डिफरेंस कम्स टू 35, एंड लास्ट नंबर 190 माइनस 159, लीडिंग डिफरेंस विल बी 30। अब ये चार कॉलम में से दिस इज योर वैल्यू डेल्टा 10। Normally these are the notations as this one is delta 10, this one is delta 11, this one is delta 12, this one is delta 13. We are concerned about delta 10, delta 20, delta 30, first number of the leading difference column. वही प्रोसेस कंटिन्यू करता है सेकंड कॉलम के लिए डेल्टा 20 के लिए। इसके लिए इमीडिएट लास्ट कॉलम कंसीडर करना है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना नहीं है। लीडिंग डिफरेंस 2 आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लीडिंग डिफरेंसेस 1। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करते हैं। मेक द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट नंबर इज 51 माइनस करेंगे नंबर 42, डिफरेंस कम्स टू 9। सेकंड लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करते समय नंबर 35 माइनस नंबर 51, लॉजिकल कैलकुलेशन करना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, डिफरेंस विल बी नेगेशन। नंबर 35 माइनस नंबर 51, लीडिंग डिफरेंस कम्स टू -16। एंड लास्ट लीडिंग डिफरेंस फोर्थ नंबर माइनस थर्ड नंबर, लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए नंबर 31 माइनस नंबर 35, लीडिंग डिफरेंस कम्स टू -4। तो हियर दीज आर द नंबर एज डेल्टा 20, डेल्टा 21, डेल्टा 22। इसमें से हमें नंबर पहला चाहिए, लीडिंग डिफरेंस 1 कंसीडर्ड एज डेल्टा 20, दैट नंबर इज नंबर 9। सिमिलरली कंटिन्यू करते हैं डेल्टा 30 का कॉलम, सेम फॉर्मूला, सेकंड नंबर में से पहला नंबर माइनस करेंगे, नंबर माइनस करते समय सेकंड नंबर इज -16, जिसमें से माइनस करना है -9, तो -16 में से -9 माइनस करेंगे, रिजल्ट विल बी -25। थोड़े से प्लस माइनस के लॉजिकल ऑर्डर कंसीडर करना है, नहीं समझ में आएगा तो पेंसिल में लिखना है, -16 -9 दोनों माइनस माइनस है, नंबर आपका रहेगा -25। सेकंड लीडिंग डिफरेंस, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर अगेन -4 की संख्या में से माइनस करना है -16, तो आंसर विल बी 12। कैलकुलेशन समझने के लिए थोड़ा सा ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूं, -4 में से माइनस क्या है -16, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो अल्टीमेट कैलकुलेशन इज -4 प्लस 12, देयर प्लस 16, सो अल्टीमेट आंसर इज 12। एंड लास्ट लीडिंग डिफरेंस डेल्टा 40, इसमें से डेल्टा 30 का नंबर कितना रहेगा -25। लास्ट कैलकुलेशन करते समय दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे, 12 में से माइनस करना है -25, सो आंसर विल बी 37। अगेन यहां पर कैलकुलेशन क्या हुआ, 12 माइनस ऑफ -25, माइनस माइनस बिकम प्लस, 12 में 25 प्लस हो गए, तो फाइनल आंसर कितना हुआ 37। यहां पर मुझे ऑप्शन हो गया नंबर 37। यहां तक हमने फॉर्मूला में एडॉप्ट करने के लिए 4 लीडिंग डिफरेंसेस फाइंड आउट किए। वैल्यू ऑफ डेल्टा 10 इज 42, वैल्यू ऑफ डेल्टा 20 इज 9, वैल्यू ऑफ डेल्टा 30 इज 25 -25, एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा 40 इज 37। नेक्स्ट हमें कंसीडर करना है फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांस डिफरेंशियल। व्हाट इज द फॉर्मूला? adopting
न्यूटन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला इज yx is equal to y0 प्लस। मित्रों ये तीसरी बार हम लोग गणित कर रहे हैं, जिनको अभी भी फार्मूला एक्सपांशन नहीं समझ में आएगा, टेक्निकली हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, y0 प्लस डेल्टा 10 प्लस डेल्टा 20 प्लस डेल्टा 30 एंड सो ऑन। लेकिन ये कैलकुलेशन करते समय y0 में x इंटू डेल्टा 10 x इंटू समथिंग करेंगे। पहले फंक्शन के लिए एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कंसीडर करना है, सेकंड फंक्शन के लिए दो न्यूमरेटर और दो डिनोमिनेटर आने चाहिए, तीसरे फंक्शन के लिए तीन न्यूमरेटर तीन डिनोमिनेटर के नंबर्स रहेंगे, और नंबर्स कितना रहेगा, x, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, न्यूमरेटर में यदि आपके तीन नंबर्स आए तो पहले तीन संख्या का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में यदि आपके चार नंबर्स आए तो पहले चार संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। इस तरह का एक्सपांडेड फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गिवंस हमें अडॉप्ट करना है। नंबर्स 5 यदि है तो ये एक्सपांडेड फॉर्मूला डेल्टा 40 तक कंटिन्यू करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, तो y0 प्लस x इंटू डेल्टा 10। डेल्टा 20 के लिए नंबर मुझे दो कंसीडर करना है, तो पहले दो नंबर क्या रहेंगे अंश में, x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, दो नंबर अंश में तो दो नंबर छेद में, पहले दो संख्याओं का गुणाकार, तो फॉर्मूला विल बी x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 20 होल डिवाइडेड बाय नंबर 1 इंटू नंबर 2। हमें यह फॉर्मूला एक्सपांड कहां तक करना है, नॉन वैल्यूज आर 5, एडजॉइनिंग डिफरेंसेस कम्स टू डेल्टा 40। फॉर्मूला में जब डेल्टा 40 रहेगा वो हमारा लास्ट नोटेशन रहेगा। अगेन फॉर्मूला को एक्सपांड करते हैं, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 30। लेकिन हमारे कैलकुलेशन में डेल्टा 40 तक एक्सपेंशन करना है। लास्ट फंक्शन विल बी प्लस x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अंश में 1 2 3 4 नंबर आए, छेद में पहले चार नंबर का सीरियल मल्टीप्लिकेशन, नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 40। इस लॉजिकल ऑर्डर में यदि हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे तो आपका फॉर्मूला कभी भी भूल नहीं जाएंगे। याद यदि करोगे तो यू विल बी कमिटेड पर्टिकुलर मिस्टेक्स। इस तरह से आपको फॉर्मूला को जनरेट करना है, एक्सपांड करना है। पहले क्वेश्चन में आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा, सेकेंड एग्जाम्पल में थोड़ा सा आधा अधूरा समझाऊंगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो रही है आपको उसकी रीचेबिलिटी ज्यादा हो रही है। नाउ सब्स्टिट्यूट द नंबर्स। अब नंबर सब्स्टिट्यूट करते समय मेजर कंसर्न रहा इसमें कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x। तो पहले स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है लीडिंग डिफरेंस टेबल, सेकंड स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना था वैल्यू ऑफ x, एंड थर्ड स्टेप में आपको अडॉप्ट करना है फॉर्मूला। स्पेस के अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं वैल्यू ऑफ x को अभी यहां मैनेज कर लेता हूं टाइम भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड माइनस वैल्यू ऑफ ओरिजिन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टू एडजॉइनिंग वैल्यूज। कैलकुलेशन ऑफ x, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड। एक क्वेश्चन के लिए थर्ड डिवीजन मार्क्स, कट ऑफ क्या रहेगा 45 से लेस देन। तो वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड क्या है, लेस देन 45 नंबर्स मुझे ऑब्टेन करना है। तो x का वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड कितना हो गया 45 नंबर्स, माइनस x का ओरिजिनल वैल्यू। इस सीरीज में x का ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, मतलब x0 का वैल्यू, x0 का वैल्यू कितना दिया है नंबर 40। ओरिजिनल क्लास इंटरवल में 30 to 40 थे। अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था 30 लेना है कि 40 लेना है। डाटा इज कन्वर्टेड इनटू लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप में पहला नंबर कितना रहेगा आपका, फर्स्ट वैल्यू इज 40। तो वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड 45 माइनस ओरिजिनल वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय x के एडजॉइनिंग वैल्यूज का डिफरेंस। 40 से 50 का अंतर 10 का है, 50 से 60 का अंतर 10 का है, 60 से 70 का अंतर 10 का है। एनी एडजॉइनिंग वैल्यू जब कॉमन क्लास इंटरवल तो डिफरेंस विल बी सेम एंड डिफरेंस कम्स टू 10। कैलकुलेशन कितना रहेगा 45 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10, द वैल्यू ऑफ x कम्स टू 0.5। पहले स्टेप में हमने लीडिंग डिफरेंस फाइंड आउट किया, सेकंड स्टेप में हमने x वैल्यू फाइंड आउट की, थर्ड स्टेप में हमें फार्मूला को अडॉप्ट करना है। नाउ अप्लाई द फार्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द नंबर्स।
हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला नंबर आपका रहेगा y0। y0 का फर्स्ट वैल्यू कितना है 31। x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 10, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 10, रेफर टू द लीडिंग डिफरेंस टेबल। लीडिंग डिफरेंस टेबल में डेल्टा 10 का नंबर आया आपका 42 प्लस थर्ड फंक्शन x multiplied by x minus 1, value of x comes to 0.5 multiplied by 0.5 minus 1 multiplied by delta 20, delta 20 refer to the leading difference table, value of delta 20 is 9 whole divided by number 1 into 2. Next function x into x minus 1 into x minus 2, 3 नंबर न्यूमरेटर में 3 नंबर डिनोमिनेटर में, वैल्यू ऑफ x कम्स टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा 30 का कैलकुलेटेड वैल्यू कितना बन रहा है -25 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर 1 into 2 into 3 प्लस लास्ट फंक्शन डेल्टा 40 वाला, 4 नंबर अंश में 4 नंबर छेद में, न्यूमरेटर के नंबर्स रहेंगे x वैल्यू दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 into 2 into 3 into 4 multiplied by delta 40, calculated value of delta 40 as per the leading difference table comes to 37. Formula में value substitute की। Second step, simplify the numbers, take the differences. Difference निकालते हैं। पहला नंबर 31 as it is. Calculation बताइए, 42 into 0.5, it comes to 21 प्लस तीसरे फंक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंसेस 0.5 एच डी रहेगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 1, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रही है, प्लस माइनस के लॉजिकल कैलकुलेशन करना है, 0.5 में से एक की संख्या माइनस हो रही है, कैलकुलेशन में भी नेगेटिव 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 होल डिवाइड बाय 1 into 2 comes to 2. नेक्स्ट फंक्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 नंबर का डिफरेंसेस। पहला नंबर 0.5, सेकंड नंबर 0.5 में से एक की संख्या माइनस हो रही है, नेगेटिव 0.5, तीसरा डिफरेंस 0.5 में से 2 का नंबर माइनस हो रहा है, डिफरेंस इज नेगेटिव 1.5 एंड नेक्स्ट नंबर -25, नंबर -25 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 into 2 into 3 इट कम्स टू 6. नेक्स्ट फंक्शन difference 1, difference 2, difference 3, difference 4, 4 difference and fifth number divided by multiplication of 4 number. पहला लीडिंग डिफरेंस 0.5, नेक्स्ट लीडिंग डिफरेंस 0.5 में से 1 माइनस हुआ नेगेटिव 0.5, नेक्स्ट वन 0.5 में से 2 माइनस करेंगे नेगेटिव 1.5, नेक्स्ट नंबर 0.5 में से 3 की संख्या माइनस करना है नेगेटिव 2.5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 37 होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 into 2 into 3 into 4 it comes to 24. इसके आगे का कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग है, थोड़े से फॉर्मूले में आपको कंसीडर करना है, जहां पर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन रहेंगे योर फाइनल आंसर विल बी इन माइनस, जिस फंक्शन में इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन रहेंगे योर आंसर विल बी प्लस। ये मैं क्या बता रहा हूं, फॉर इंस्टेंस ये वाला फंक्शन देखिए, इसमें माइनस के साइन कितने हैं 1 2 3, माइनस के 3 साइन है, एवरी पेयर ऑफ माइनस माइनस बिकम प्लस, तो सम संख्या यदि रहेंगी इवन नंबर यदि रहेंगे तो फाइनल आंसर विल बी प्लस, जब विषम संख्या रहेंगी तो फाइनल आंसर विल बी निगेशन। ये समझने के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद में रखिए, जब विषम संख्याओं के नेगेटिव साइन रहेंगे योर आंसर विल बी माइनस, जब सम संख्या के आपके पॉजिटिव साइन रहेंगे योर आंसर विल बी इन प्लस, अंश का या छेद का इंटीजर। उसके बाद माइनस डिवाइड बाय माइनस और प्लस डिवाइड बाय प्लस,
योर आंसर विल बी इन प्लस। अंश और छेद, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के दोनों साइन यदि सेम रहते हैं तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अक्सर यहीं पर आपकी गलती हो जाती है। लेकिन अंश माइनस है, छेद प्लस में है, या अंश पॉजिटिव है लेकिन छेद नेगेटिव है, the signs of numerator and denominator are opposite signs, plus divided by minus or minus divided by plus, your final answer will be in negation। ये कहीं तो भी आपके रजिस्टर के मार्जिन में नोट करके रखिए, इसी को हम लोग अडॉप्ट करते हुए नेक्स्ट फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। पहला कैलकुलेशन, कांस्टेंट नंबर इज 31। दूसरा कैलकुलेशन, कांस्टेंट नंबर इज 21। तीसरा कैलकुलेशन, प्लस लिख दिया मैंने, लेकिन ये गलती करना नहीं है। प्लस लिखने के पहले वेरीफाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में विषम संख्या का एक ही साइन है, मींस न्यूमरेटर विल बी इन माइनस, डिनोमिनेटर इज इन प्लस। ऑड नंबर ऑफ इवन साइन रहने के कारण आंसर विल बी माइनस, यहां पर पॉजिटिव है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन, फाइनल आंसर किस में रहना चाहिए? माइनस में, तो फाइनल आंसर विल बी माइनस। नाउ मेक द कैलकुलेशंस। अल्टीमेटली मुझे कांस्टेंट नंबर बताना है आपको। नंबर 0.5 इंटू नंबर 0.5 इंटू नंबर 9 होल डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स टू 1.125 125। कैलकुलेशन रिपीट कीजिए एक बार। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट नंबर 9 होल डिवाइडेड बाय नंबर 2, तो फाइनल आंसर इज नेगेटिव 1.125। अब नेक्स्ट फंक्शन माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा? अगेन काउंटिंग द नेगेटिव साइंस। अब नेक्स्ट एलिमेंट में नेगेटिव साइन नंबर 1, नेगेटिव साइन नंबर 2, नेगेटिव साइन नंबर 3। ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, तो न्यूमरेटर विल बी नेगेशन, डिनोमिनेटर में अगेन प्लस रहा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस, देन द अल्टीमेट आंसर विल बी इन माइनस। पहले साइन को वेरीफाई करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेटर पे 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नंबर 0.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर 0.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 25, 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होल डिवाइडेड बाय 6। टेल मी द फाइनल आंसर। 1.562 1.562। लास्ट फंक्शन, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? वेरीफाई द नेगेटिव साइंस। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 1 2 3। अगेन ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर विल बी इन माइनस। यदि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 4 रहेंगे तो एवरी पेयर ऑफ 2 विल बिकम प्लस, तो फाइनल आंसर किसमें रहेगा आपका? 10 में। तो लास्ट फंक्शन में 3, ये विषम संख्या का माइनस साइन रहने के कारण न्यूमरेटर विल बी इन माइनस, डिनोमिनेटर इज इन प्लस। एज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन, फाइनल आंसर आपका किसमें रहेगा? माइनस में। एक बार हमने माइनस को वेरीफाई कर लिया। अल्टीमेटली 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर पर करेंगे विदाउट साइन। मेक द कैलकुलेशन अलोंग विद मी। नंबर 0.5 into number 0.5, third number multiplied by 1.5, fourth number multiplied by 2.5, last number multiplied by 37 is equal to whole divided by 24. Final answer comes to 445 1.44 1.445। सारे नंबर्स का प्लस माइनस करना है। नंबर 31 प्लस नंबर 21 माइनस 1.125 minus 1.562 minus 1.445. Final answer is 47.867 867. 47.867 is the estimated number of student. As the number of student is a natural human being, it cannot be in fraction. जब भी ह्यूमन बीइंग का डाटा रहेगा, it cannot be in fraction. Make in multiples of next 1. Next multiples of 1 कितना रहेगा? Approximately it comes to 48। तो व्हाट इज द रिजल्ट? हम लोग कंसीडर कर रहे थे लेस देन 45, तो देयर आर 48 स्टूडेंट्स इन अ क्लास हु ऑब्टेन बिलो 45 नंबर्स। देयरफॉर थर्ड डिवीजन, दैट इज लेस देन 45 marks is obtained by 48 students. That is the final answer. समझ में आ गया? इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपको होमवर्क करके सॉल्व करना है। उसके लिए जो मेजर टिप है वो मैं आपको दे देता हूं। ये आपको होमवर्क करके सॉल्व करना है, सो दैट
सेम क्वेश्चन का एक बार आपको प्रैक्टिस होगा। यहां पर आप लोगों का स्टेप नंबर 1 कॉमन रहेगा, लीडिंग डिफरेंस टेबल आपका सेम रहेगा, बट स्टेप नंबर 2 वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड चेंज हो गया, वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज। तो स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड फार्मूला, ये स्टेप्स आपके बदल जाएंगी। आपको जेन्युइनली रजिस्टर में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि इसका आपका होमवर्क का प्रैक्टिस होता रहेगा। अब सेकंड नंबर क्या था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मींस अबव 70, अबव 75 हो जाए, रादर अबव 74, अबव 75 नहीं, बिकॉज एग्जैक्टली इक्वल टू 75 भी आपका डिस्टिंक्शन है। तो अबव 74 का नंबर आपको कंसीडर करना है एज ए डिस्टिंक्शन। लेकिन आपका डाटा लेस देन टाइप का है, मोर देन टाइप का है क्या? नहीं। तो मुझे अबव 74 फाइंड आउट करने के लिए टोटल नंबर में से माइनस करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन बिलो 75। आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, पहले मैं लेस देन 75 का डाटा फाइंड आउट करूंगा। लेस देन 75 का डाटा मींस ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डिस्टिंक्शन नहीं है। अबव 74 इज अ डिस्टिंक्शन नंबर, 75 एंड अबव। तो बिलो 74 नॉट डिस्टिंक्शन। तो नेगेटिव डाटा हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। टोटल क्लास में से ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर 75 से कम है, मींस दैट स्टूडेंट आर नॉट ऑब्टेन द डिस्टिंक्शन। अब टोटल नंबर में से विदाउट डिस्टिंक्शन वाले नंबर को यदि मैं माइनस करता हूं तो रिमेनिंग नंबर क्या रहेगा, डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यहां पर कंसीडर करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं, 190, मतलब 31 प्लस 42 प्लस 51 प्लस 35 प्लस 31। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 190 स्टूडेंट। तो टोटल नंबर 190 में से बिलो 75 ऑब्टेन करने वाला नंबर जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा अबव 75 या थर्ड डिवीजन का नंबर। फॉर्मूला समझ में आ गया? तो बिलो 75 के लिए वैल्यू टू बी इंटरप्रेटेड क्या हो जाएगा, 75। तो 75 minus 40 divided by 10, your x value will be 3.5 for the second calculation. And considering x as a 3.5, substitute the data, make the calculation, find out the number, but ultimate number is not of distinction. Ultimate calculation आपका रहेगा number of student who obtained below 75. मुझे फाइंड आउट करना है थर्ड डिवीजन। तो बिलो 75 का नंबर टोटल 190 में से माइनस करना है, ये लास्ट स्टेप करना है आपको डिफरेंस का। वो डिफरेंस का स्टेप करने के बाद जो रिमेनिंग डाटा रहेगा वो रहेगा थर्ड डिवीजन। एंड तीसरा कैलकुलेशन सेकंड डिवीजन मार्क्स। सेकंड डिवीजन मार्क्स के लिए आपको कंसीडर करना है 45 टू 75। इसके लिए आपको फॉर्मूला एडॉप्ट करना है बिलो 75 के नंबर में से बिलो 45 का नंबर माइनस करना है। This is for calculation B, this is for calculation C। सेकेंड डिवीजन मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए लेस देन 75 के नंबर में से लेस देन 45 का नंबर आपको माइनस करना है। लेस देन 45 का वर्किंग आपका ऑलरेडी पहले स्टेप में हो गया है। लेस देन 45 का नंबर आपके पास अवेलेबल कितना है, 48। लेस देन 75 का भी वर्किंग आपका सेकंड ही ऑलरेडी हो रहा है। तो बिलो 45 के नंबर में से बिलो 45 का नंबर यदि आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट द सेकंड डिवीजन मार्क्स। ये दोनों आपको एज ए होमवर्क कंसीडर करना है। बाकी के लिए मेथड को हम लोग कंसीडर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।